تو کیا ہوگا اگر دنیا میں ایک ایسا وائرس آ جائے جس کی وجہ سے انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور پلینٹ پر جانے لگے اور جہاں پر یہ جائیں وہاں پر انسانوں کے بچے ہی پیدا نہ ہو۔ آج کی جو مووی میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور مووی دیکھنے کے بعد آپ کو مزہ بھی آنے والا ہے، تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے دنیا کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ دنیا انسانوں کے رہنے کے قابل ہی نہیں بچی، جیسا کہ بہت زیادہ پولوشن، درختوں کی کٹائی، الگ الگ قسم کے بایو ویپنز یوز کرنا اور الگ الگ ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے اس دنیا میں رہنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ خیر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا اور کیپلر نام کے ایک پلینٹ پر جا کر آباد ہو گئے، لیکن وہاں پر موجود ہیوی ریڈیشنز کی وجہ سے اس پلینٹ پر موجود سبھی لوگ انفرٹائل ہو گئے، یعنی ان کی جنریشن آگے نہیں بڑھ سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر بچے ہی نہیں پیدا ہوتے تھے۔ اس وجہ سے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان کی جنریشن آگے ہی نہیں بڑھتی تھی اور لوگ مرتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس پلینٹ پر لوگوں کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ اس بات کے تقریباً 200 سال بعد کیپلر کے لوگ دوبارہ سے پلان بناتے ہیں کہ انہیں پلینٹ ارتھ پر واپس چلے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہو گئی ہو اور وہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل ہو چکی ہو، کیونکہ سبھی لوگ اس پلینٹ پر بہت زیادہ پریشان تھے اور یہ سارے لوگ جتنا جلدی ہو سکے اس پلینٹ کو چھوڑنا چاہتے تھے اور اب کافی سالوں بعد یہ اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر اس مشن کا نام یولیسس 1 رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھے، اس لیے یہ کچھ ایسٹروناٹس کو دنیا پہ بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا پہ جائیں اور وہاں پر جا کر اس بات کا پتہ لگوائیں کہ آخر اب دنیا رہنے کے قابل ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ لوگ اس پلینٹ سے ایسٹروناٹس کو دنیا کی طرف بھیج دیتے ہیں جن کو دنیا پہ آنے کے لیے تقریباً 7 سے 8 سال سفر کرنا پڑے گا۔ خیر اب وہ دن تھا جب ایسٹروناٹس دنیا پر پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا پہ پہنچتے ہیں تو ان کا کیپلر کے ساتھ رابطہ ختم ہو چکا تھا اور جب اگلے کافی سالوں تک ان کا رابطہ واپس نہیں ہوتا تو یولیسس 2 نام کا ایک اور مشن تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اس پلینٹ سے کسی بھی حال میں نکلنا چاہتے تھے اور ارتھ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور پلینٹ نہیں تھا۔ اب اس لیے وہ ارتھ پر آنے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور ارتھ پہ آنے کے لیے ان کا مشن دوبارہ سے بالکل ریڈی تھا، لیکن اب جیسے ہی وہ دنیا پہ پہنچتے ہیں تو ان کا اسپیس شپ پانی میں کریش ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ 3 ایسٹروناٹس دنیا پہ آئے تھے۔ ناروک اپنے ساتھیوں کو بچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، لیکن کریش کی وجہ سے ان کا ایک ساتھی مر چکا تھا۔ ناروک کا ایک ساتھی ابھی بچا تھا جس کا نام ٹگر تھا، اس کے پاؤں میں بہت گہری چوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور اسے چلنے میں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ خیر جب بلیک پلینٹ ارتھ کو ایکسپلور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کیپلر کی طرح یہاں پر کوئی بھی ریڈیشن نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بلیک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اب ہم لوگ دنیا پہ آ جائیں گے اور دنیا پہ آ کے اپنی جنریشن کو آگے بڑھا کر اپنی زندگی خوشی سے گزاریں گے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی خوشی اب زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں۔ خیر بلیک اپنے بایو میٹر سے پانی کو چیک کرتی ہے کہ کیا دنیا انسانوں کے رہنے کے قابل ہوئی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ سب کچھ مانیٹر کر ہی رہی تھی کہ اسے سامنے ایک جیلی فش نظر آتی ہے۔ جیلی فش کو یہاں پر دیکھ کر بلیک بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اب جیسے ہی وہ جیلی فش کے پاس اس کا سیمپل لینے کے لیے جاتی ہے تبھی وہ جیلی فش اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے اور اب اتنے میں ہی یہاں چاروں طرف بہت دھند ہونے لگتی ہے، اتنی زیادہ دھند ہو جاتی ہے کہ قریب سے بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اب بلیک کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور نہ ہی اسے اپنے کرافٹ کی لوکیشن پتا تھی، جو دیکھ یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ خیر اچھی بات یہ تھی کہ بلیک ٹگر کے ساتھ کال پہ بات کر رہی تھی۔ ٹگر اسے کرافٹ میں واپس آنے کا کہہ رہا تھا، لیکن بلیک کو اپنے کرافٹ کی لوکیشن ہی نہیں پتا تھی، جس کے بعد ٹگر ایک فلیئر گن چلاتا ہے جس کی روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے بلیک اپنے کرافٹ کی طرف جانے لگتی ہے، لیکن بلیک کے علاوہ یہاں پر کوئی اور بھی تھا جس نے فلیئر گن کی روشنی کو دیکھ لیا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ بلیک یہاں پر آ پاتی وہ آدمی ٹگر پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ٹگر کو یہاں سے لے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بلیک کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ ٹگر کو لے کر گئے تھے۔ بلیک دیکھتی ہے کہ ٹگر کے زخم سے بہت خون بہ رہا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ اس کی پہلے بھی بہت بلیڈنگ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا پہلے ہی کافی خون ضائع ہو چکا تھا۔ خیر وہ لوگ ان دونوں کو ایک گڈھے میں جا کر پھینک دیتے ہیں۔ بلیک اس گڈھے سے باہر جا کر مدد مانگنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے وہ ٹگر کا خون بہنا بند کر سکے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے انہیں دی مرڈز کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ خیر بلیک کے بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد یہ لوگ ان دونوں کو گڈھے سے باہر نکالتے ہیں، لیکن ان کی مصیبت تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب مسئلے کی بات یہ تھی کہ دی مرڈز کے لوگوں کو ان دونوں کی زبان ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ یہ دونوں انہیں اپنی باتیں سمجھانے کی پوری کوشش میں تھے، لیکن ان دونوں کی باتیں ان کے سر سے گزر رہی تھی۔ لیکن یہاں پر انہیں ایک ناروک نام کی لیڈی ملتی ہے جو انگلش بول سکتی تھی۔ وہ بلیک کو ایک میڈیکل کٹ دیتی ہے اور بلیک سے کہتی ہے کہ ٹگر کو ٹھیک کرنے سے پہلے تم ہمارے ایک زخمی آدمی کا علاج کرو۔ اس کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن بلیک اس کا بھی علاج کرتی ہے اور اس کا علاج کرنے کے بعد وہ ٹگر کے پاس آتی ہے۔ اب بلیک ٹگر کا علاج کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے
कि मैंने यहाँ पर लोगों के बच्चे भी देखे हैं और इसका मतलब ये है कि दुनिया पे जनरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर ऐसे ही हमारी जनरेशन भी आगे बढ़े तो हम भी अपनी जिंदगी दुनिया पे बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। यहाँ पर डगर ब्लैक से कहता है कि देखो, मेरे जिस्म से बहुत खून बह चुका है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ आगे सफर कर सकूं और मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहता। हो सके तो अपने लोगों को यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करना। और बस ये कहकर वो एक सुसाइड टैबलेट खाकर खुद की जान ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पहला मिशन जिसका नाम यूलाइसिस 1 था, उसके अंदर ब्लैक के फादर भी थे और ब्लैक के अर्थ पर आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो अपने फादर को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि जब वो अपने फादर के साथ केपलर पर रहा करती थी तो उसके फादर उसे अर्थ के बारे में बताया करते थे। वो उसे बताते थे कि जब वो लोग छोटे थे तो वो दुनिया से केपलर पर बहुत से लोगों के साथ आए थे। खैर अब वहाँ पर इंसानों की तादाद बहुत तेजी से कम हो रही थी। इतने में मड के कुछ बच्चे आकर उस गड्ढे में पानी भरने लगते हैं जहाँ पर ब्लैक को रखा गया था। सभी बच्चे ब्लैक का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची थी जो ब्लैक से बात करना चाहती थी। इस बच्ची का नाम माइला था, लेकिन मसला ये था कि उसे भी ब्लैक की लैंग्वेज नहीं समझ आती थी। इसके बाद ब्लैक दीवार पर कुछ तस्वीरें बनाकर उसे बताने की कोशिश करती है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आई है। ब्लैक उस बच्ची से रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मेरा रेड बॉक्स मुझे ढूंढ कर दे दो। अब थोड़ी देर गुजरती है तो ब्लैक को गड्ढे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ब्लैक एकदम से बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कुछ बच्चे छुपने के लिए इसके पास गड्ढे में आ जाते हैं। ब्लैक डरते हुए थोड़ा सा ऊपर जाकर एक होल में से देखती है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर मर्ड्स के लोगों पर हमला कर रहे थे। वहाँ पर उसे माइला भी नजर आती है जिसके हाथ में वो रेड बॉक्स था। खैर जो बच्चे गड्ढे में आए थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इनमें से एक छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत ज्यादा रो रहा था। ब्लैक उस बच्चे को अपने हाथों में उठाती है और उसे प्यार करके उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। इसके बाद जब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो नार्विक इन बच्चों को ऊपर आने को कहती है और साथ ही वो माइला को भी ढूंढ रही थी क्योंकि माइला उसकी बेटी थी। लेकिन काफी ढूंढने पर भी माइला उसे नहीं मिलती क्योंकि जिन लोगों ने इन पर हमला किया था वो लोग माइला को भी अपने साथ ले गए थे। इसके बाद नार्विक अपनी बेटी माइला को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक भी उसके पीछे आ रही थी। अब जैसे ही ये दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो इन्हें वो लोग नजर आ जाते हैं। ये दोनों उन्हें दूर से देख रही थी। ये देखती हैं कि वो लोग अपने साथ लाए हुए कैदियों को एक बोट में बिठा रहे थे। ये देखकर ये दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये देखकर नार्विक खुद को ना कंट्रोल करते हुए एक फ्लेयर गन चलाने वाली थी तो ब्लैक उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मेरी बात सुनो, तुम इस गन से उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और उल्टा वो तुम्हें भी पकड़कर कैद कर लेंगे। लेकिन नार्विक ब्लैक की बात नहीं सुनती और फ्लेयर गन को चला देती है और अब ब्लैक को मजबूरी में आकर नार्विक को बेहोश करना पड़ता है। जिसके बाद वो फ्लेयर गन को दूसरी साइड पे चलाती है ताकि उनका ध्यान किसी और तरफ हो सके। इसके बाद वो छिपते हुए इनकी बोट में चली जाती है। यहाँ पर ब्लैक अपने बॉक्स को बहुत ज्यादा ढूंढती है और फाइनली उसे उसका बॉक्स मिल जाता है। अब इससे पहले कि वो बॉक्स को लेकर यहाँ से निकल पाती वो लोग यहाँ पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद ब्लैक वहाँ पर जाकर छुप जाती है जहाँ पर इन लोगों ने कैदियों को रखा हुआ था। ब्लैक देखती है कि कैदी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। खैर कुछ देर बाद वो लोग इन कैदियों को यहाँ से बाहर निकालकर एक बड़े शिप में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनका बॉस आता है जिसका नाम पेलिंग था। वो एक एक करके इन सभी को चेक कर रहा था और अब जैसे ही वो ब्लैक के पास आता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो दिखने में बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही थी। इसके बाद वो ब्लैक को अपने साथ ले जाता है और अपने बॉस गिब्सन से मिलाता है। गिब्सन भी ब्लैक को देखकर बहुत हैरान होता है और उसे बताता है कि मैं भी उसी स्पेसशिप में आया था जो यूलाइसिस 1 मिशन में दुनिया पर आई थी और मैं तुम्हें भी जानता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो तुम बहुत छोटी थी। इसके बाद गिब्सन और ब्लैक बहुत सी बातें करते हैं और यहाँ पर ब्लैक को ये भी पता चलता है कि गिब्सन ब्लैक के फादर के साथ ही था। गिब्सन ब्लैक को बताता है कि तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पर हमें एक नील नाम के बच्चे को भी देखते हैं। गिब्सन बताता है कि इसे मैंने अडॉप्ट किया था। वो ब्लैक से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ वाले लोग कहाँ हैं, जिस पर वो जवाब देती है कि मेरे साथ आए हुए सभी लोग मारे गए और अब तो मेरा केपलर के साथ कांटेक्ट भी टूट चुका है क्योंकि मेरा स्पेस क्राफ्ट भी डैमेज हो चुका है और अब इसीलिए मुझे उस रेड बॉक्स की तलाश है जो अगर मुझे मिल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और वो बॉक्स अभी भी तुम्हारी शिप पर पड़ा हुआ है लेकिन उसे यूज में लाने के लिए हमें यूलाइसिस 1 की ट्रांसमिशन चाहिए। लेकिन वो उसे बताता है कि यूलाइसिस 1 तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। जिसके बाद वो ब्लैक को उसके फादर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर यहाँ पर आकर मर्ड्स के साथ रहने लगे और जब उन्होंने केपलर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मर्ड्स को ये बात बहुत बुरी लगी और फिर उन लोगों ने गुस्से में आकर तुम्हारे फादर के खिलाफ बगावत कर दी। अब चूंकि वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे
तो उन्होंने क्राफ्ट को डैमेज करके तुम्हारे फादर को भी मार दिया। इसके बाद वो ब्लैक को कुछ ड्राइंग्स दिखाता है जो कि हाईटेक मशीन की थी, जो देखने में ही लग रहा था कि ये किसी माहिर साइंसदान ने बनाई होगी, और वो माहिर साइंसदान कोई और नहीं बल्कि ब्लैक के फादर ही थे। इसके बाद गिब्सन ब्लैक को बताता है कि हम इनमें से एक मशीन पर काम कर रहे हैं जिसका यूज करके हम लोग इस प्लेनेट पर एक और सिविलाइजेशन को बना सकते हैं। इसके बाद वो ब्लैक को एक कैबिन देते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो दुनिया पर आकर इस काबिल हो चुकी है कि वो बच्चा पैदा कर सके। इसके बाद ब्लैक को कुछ बच्चों के साथ मिलवाया जाता है जिनकी यहाँ पर क्लास चल रही थी, और यहाँ पर इन बच्चों को केपलर के बारे में बताया जाता था। अब इसके बाद ब्लैक नील के पास जाती है जो कि एक पौधे के साथ खेल रहा था। नील ब्लैक को बताता है कि ये एक पौधा है और एक टाइम में आकर ये हमसे बड़ा हुआ करते थे। अब नील की ये बात सुनकर ब्लैक काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये बात ब्लैक के फादर उसे बताया करते थे। इसके बाद ब्लैक नील से पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बातें किसने बताई। नील उसे बताता है कि मैं वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके क्रिस्ट ऑफ कोलंबस के नाम से एक आदमी से बात करता हूँ जो मुझे ये सिखाता है, और वो आदमी इंजन रूम के पास वाले रूम में रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं क्योंकि मेरा उस रूम में जाना अलाउ ही नहीं है। ब्लैक सोचती है कि मुझे इस बारे में पता लगवाना होगा कि आखिर वो आदमी कौन है। इसके बाद वो वहाँ पर जाकर डोर के अंदर से देखने लगती है। वो अंदर एक आदमी को बैठा हुआ देखती है, लेकिन तभी वहाँ पर गिब्सन आ जाता है। ब्लैक उसे कहती है कि तुमने मेरे फादर के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। गिब्सन उसे कहता है कि असल बात ये थी कि तुम्हारे फादर ने खुद ही उन क्राफ्ट्स को तोड़ा था ताकि उनका कभी भी केपलर के लोगों के साथ कांटेक्ट ना हो सके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि केपलर के लोग यहाँ पर आएं। अब ब्लैक इन सभी बातों को कंफर्म करने के लिए कैबिन के अंदर जाती है क्योंकि ब्लैक को इस बात का पता चल चुका था कि अंदर बैठा हुआ आदमी ब्लैक के फादर ही है। इसके बाद वो अंदर जाकर रोते हुए अपने फादर को गले लगाती है। अपने फादर से पूछती है कि आखिर आप मुझे वहाँ पर छोड़कर अकेले यहाँ पर क्यों आ गए थे, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, क्या आपको मेरी कभी याद नहीं आई। जिस पर वो ब्लैक से कहते हैं कि देखो बेटा, मर्ज के लोगों का कितना बुरा हाल है, और अगर केपलर के लोग भी यहाँ पर आ जाते तो मर्ज का और भी बुरा हाल हो जाता, और ऐसा होते होते उनका नाम भी यहाँ से मिट जाता, और इसीलिए मैंने सारे मशीन्स को तोड़ दिया ताकि केपलर के लोगों का हमारे साथ कोई भी राब्ता न हो सके। ये बात सुनकर ब्लैक थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद गिब्सन ब्लैक के पास आकर उसे कहता है कि जहाँ पर तुम्हारी स्पेसशिप क्रैश हुई है वहीं पर एक वेदर स्टेशन है जहाँ पर जाकर अगर बायोमेट्रिक मशीन को कनेक्ट कर दिया जाए तो हम लोग केपलर पर सिग्नल्स को भेज सकते हैं। अब रात को जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो नील की मॉम उसे बताती है कि जब नील पैदा हुआ था उस वक्त गिब्सन ने हम दोनों की जान बचाई थी, तब से उसने हमें अडॉप्ट करके रखा हुआ है और हम इसी के पास रहते हैं। कि तभी यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं क्योंकि मर्ड के लोगों ने यहाँ का जनरेटर बंद कर दिया था। गिब्सन कहता है कि तुम सभी लोग एक सेफ कैबिन में जाकर छुप जाओ, लेकिन ब्लैक नीचे चली जाती है और मर्ड्स के लोगों की लीडर नार्विक इस पर हमला कर देती है। असल में वो यहाँ पर माइला को ढूंढने के लिए आई हुई थी। इसके बाद ब्लैक नार्विक को उस रूम में लेकर जाती है जहाँ पर उन्होंने माइला को रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि माइला के साथ साथ इन लोगों ने और भी बहुत सी बच्चियों को कैद करके रखा हुआ था, और तभी वहाँ पर गिब्सन के लोग आकर नार्विक को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद ब्लैक गिब्सन से पूछती है कि आखिर तुम मर्ड्स के लोगों के बच्चों को क्यों किडनैप करते हो। वो कहता है कि केपलर से यहाँ आने के लिए तकरीबन 8 साल लगते हैं और वहाँ की सभी औरतों की उम्र 35 से ज्यादा है, और यहाँ पर पहुँचने तक वो वैसे ही फर्टाइल हो चुकी होंगी, और असल में मैं इन बच्चियों को इसलिए यहाँ पर रखता हूँ ताकि जब केपलर के लोग यहाँ पर आए तब तक ये बच्चियाँ बड़ी हो चुकी होंगी और नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ब्लैक जब गिब्सन की बातें सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि इस काम का कोई फायदा नहीं, तुम इस काम को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम्हारा बायोमेट्रिक मिल चुका है और तुम्हें जितना जल्दी हो सके उसे वेदर स्टेशन से कनेक्ट करना होगा ताकि जितनी जल्दी हो सके हमारा केपलर के साथ राब्ता हो सके, और साथ ही वो अपने आदमियों से ब्लैक पर नजर रखने को कहता है। इसके बाद ब्लैक अपने कैबिन में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर माइला भी छुपी हुई है। जिसके बाद पेलिंग भी यहीं पर आ जाता है। उसे लगता है कि ब्लैक यहाँ पर अकेली है तो उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिसके बाद ब्लैक उसका मुकाबला करती है, उसे मारती है और माइला को लेकर यहाँ से निकल जाती है और माइला को लेकर नार्विक के पास पहुँच जाती है और यहाँ पर मौजूद बाकी के मर्ड्स को भी आजाद करवा देती है। अब यहाँ पर सभी मर्ड्स मिलकर उस शिप पर अटैक कर देते हैं और फिर ब्लैक अपने फादर को मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। इसके बाद ये लोग विंडो से देखते हैं कि गिब्सन अपनी फैमिली के साथ उस वेदर स्टेशन जा रहा था। ब्लैक के फादर कहते हैं कि हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा क्योंकि अगर केपलर के लोग यहाँ पर आ गए तो वो मर्ड्स को अपना गुलाम बना लेंगे। जिसके बाद ब्लैक सभी मर्ड्स को एक शिप में बेचती है और इसके बाद गिब्सन को रोकने के लिए जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि गिब्सन बायोमेट्रिक को यूज करके सिग्नल्स को केपलर पर भेज रहा था। ब्लैक उसे अपनी गन दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी अपनी गन निकाल लेता है और ब्लैक से कहता है कि बिल्कुल भी होशियारी मत दिखाना। जिसके बाद नील की मोम उसे बताती है कि नील तुम्हारा भाई है। जिसके बाद गिब्सन नील की मोम को शूट कर देता है। अब ये देखकर ब्लैक अपनी गन को नीचे रख देती है ताकि गिब्सन नील को कुछ ना कहे। अब इसके बाद गिब्सन नार्विक पर मैसेज सेंड करने लगता है। तभी ब्लैक उसे पकड़कर पानी में गिरा देती है और गिब्सन
जैक्सन को तब तक पकड़े रखती है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब यहाँ पर ब्लैक भी मरने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर नार्विक आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद ब्लैक अपने फादर के साथ और मर्ड्स के लोगों के साथ शिप पर आ जाती है और वो फिर अपने भाई से कहती है कि केपलर से यहाँ पर काफी सारे लोग आने वाले हैं, तो हमें जंग के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो होपफुली आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।